Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is a new session, and that is we are done so far consumer theory, and we also have picked upon from the producer theory. Before going into the market structure, which is the next topic which we have to cover, I would like to discuss with you some important stuff, and that is some analysis of supply and demand and equilibrium prices. So let me rename this. This is lecture 10.1, and this is about the competitive market, application analysis of market equilibrium, and that is chapter number, I think, 8. Yeah, chapter number 8. Yeah, chapter number 8. Okay, what we'll discuss today, uh, uh, since it's an analysis of market equilibrium or competitive market analysis, competitive market analysis. You will get to know about this word competitive later on, but you still can do the analysis. So okay, so what is a market? Market is defined by the forces of supply and demand, right? And what do we have else in the market? Equilibrium, right? Right. So now we will use this, what we have done so far. We have gone through this concept earlier, और उसको use करके एक analysis करेंगे. So let me draw here the market first of all. So let me take a line from here. Okay, ये हो गया demand supply के लिए have, this is quantity excess, and that is your, let's say, this is your demand equation, and let's say this one is your supply equation. Okay, let me tell you one thing, because now you are grown up in micro. So if quantity supply is a function of price, this is called direct supply फंक्शन. ठीक है जी. और डायरेक्ट सप्लाई फंक्शन जो होता है, उसके अंदर जब आप प्लॉट करते हो तो यहाँ पे प्राइस लेते हो, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई लेते हो, और ये जो ग्राफ होता है बेसिकली ये ऐसे बनता है. इट ऑलवेज हैव दिस नेगेटिव इंटरसेप्ट. ठीक है जी. लेकिन अगर आप बनाओ प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, इसको कहते हैं इनवर्स सप्लाई फंक्शन. और जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये यू टेक क्वांटिटी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस एज डिपेंडेंट. सारी किताबों में इसी तरह बना होता है. और ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा होता है, ये बेसिकली उठ के यहाँ आ जाता है. तो मेक श्योर दैट व्हेन एवर you are making any sort of supply function, so you are making a right graph. So अभी मैं यहाँ पर quantity supply, quantity demanded, और यहाँ पे प्राइस है, तो ये इनवर्स फंक्शन बना रही हूँ. वंस आई मेक इनवर्स फंक्शन, डिमांड इसी तरह रहेगी. चाहे आप डायरेक्ट बनाओ चाहे आप इनवर्स बनाओ. अगर डायरेक्ट बनाएंगे सप्लाई डिमांड फंक्शन तो भी ऐसे ही होगा, और इनवर्स बनाएंगे तो भी ऐसे ही होगा. सिर्फ स्लोप की फ्लैटनेस एंड स्टीपनेस में फर्क पड़ जाएगा. यानी अगर इनिशियली आपका डिमांड फंक्शन इज लाइक स्टीप, तो इसमें वो फ्लैट हो जाएगा. सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, बट उसकी जो इंटरसेप्ट्स है वो उस तरह नहीं चेंज होंगे. लेकिन सप्लाई में जो मैंने आपको बताया दैट द चेंज विल अकर. तो राइट नाउ सिंस आई एम मेकिंग इनवर्स, सो आई प्रेफरेबली शुड मेक my supply function like this. इसको मैं इधर से लाइन से करती हूँ. This is my supply function. ठीक है. एंड ये क्या चीज़ है?
ये है इक्विलिब्रियम. So if I talk about equilibrium, नहीं बन रहा, ऐसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं. This is equilibrium and what is it? It is equilibrium price. ठीक है जी. अच्छा, ये वाला पार्ट मुझे ना सप्लाई का नहीं चाहिए, तो मैं इसको जरा सा इरेज कर देती हूँ. पूरा ही चला गया. चलो मैं इसको दोबारा बनाती हूँ. Let me make it one more time. And then that is सप्लाई फंक्शन. ठीक है. सो ये हमारा कन्वेंशनल सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन है. अब इसमें ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये क्या चीज है? सॉरी, ये मैं गलत कर रही थी. ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. अच्छा, अब if you just make an analysis of this function, this is very interesting topic, let me tell you. If you remember, what is demand? How you define demand? Demand is defined as willingness and ability. मैं यहाँ अलग से बना रही हूँ. लेट्स से ये अगर है क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस और ये ग्राफ बना हुआ है. सो ईच पॉइंट here is a willingness and ability of the consumer. So if I just talk about this particular point, what is it? This is a high, so high price that there is no quantity demanded. So this is a point where people are not being able to purchase. So that's why there is no demand, because ability element was missing. So that's why it's not demand. So there is no zero demand. If I talk about this point and I want to analyze or explain this point, so I'll say this is a quantity people are purchasing at this price, let's say P1, and it is a combination of willingness and ability. So very little, the little group of the people, or very less number into people, were interested to buy the quantity at a very high price. आपको पता है ना कि जितनी ज्यादा हाई प्राइस होती है बहुत लेस बायर्स होते हैं. तो बहुत से थोड़े से लोगों ने इतनी क्वांटिटी परचेज की क्योंकि दैट वाज द क्वाइट हाई प्राइस. पीपल मे बी हैविंग विलिंगनेस बट दे वर नॉट हैविंग द एबिलिटी, और मे बी दे आर नॉट इवन हैविंग द विलिंगनेस. बट एनीवेज इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी सेल हुई है और दैट शोज विलिंगनेस एंड एबिलिटी कंबाइंड. इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, अगेन इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी डिमांड हुई है, तो ये शो कर रहा है, ये जो लाइन है ये शो करती है कि दिस इज द प्राइस एट विच दिस क्वांटिटी इज डिमांडेड. सो इट इज बीइंग done when the willingness was matching ability. तो हर पॉइंट जो है वो कंज्यूमर की willingness and ability शो करता है. तो if suppose I talk about this point A, suppose, so can I say that in order to buy quantity 1, people were willing to and able to pay price P1, and to buy quantity Q2, people were willing and able to pay P2. So every quantity here can be treated as that this is the quantity which the people are willing and able to purchase at this certain price, right? So we understand that. ठीक है जी. और अगर मैं सप्लाई फंक्शन को इसी तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है, यहाँ प्राइस है, और ये हमारा ग्राफ है. तो ये पॉइंट क्या बताता है कि प्रोड्यूसर was able to supply this quantity at this price. He was able to supply, he wanted to get this price for this quantity Q2. He wanted to purchase sell this quantity at this price. So every point on the supply function shows that producer is having the ability to sell the product at certain price. So does the market is asking the consumer to pay the same price at which he was willing to pay, or does the market is giving supplier the same price that he was willing to supply on? So in order to answer this question, we will get back to this original demand function, equilibrium point, and supply function. So if I just look at like what is happening in the equilibrium, this much of the quantity is being sold, right? And this is the price being charged.
So my question here is, does every unit here, like this is 0, this is 1, this is 2, and so on, so every unit before Q bar is being sold at different price? So my first question is, what is the price the consumer was willing to pay to buy this unit 1? If you want to answer my question, what you will do, you will make a line vertical and take it to demand and supply function, just like I am making over here. So what you will say, consumer was willing to pay this much of price to buy one first unit. And if I ask about supplier, you will say supplier was able to, was ready to supply this much at this much price. ये यूनिट जो है सप्लायर इस प्राइस पे, यानी पी एस ये है और पी डी ये है, मतलब इस यूनिट को सप्लायर इस प्राइस पे सेल करना चाहता था, कर सकता था, और इस यूनिट को बायर इस प्राइस पे बाय करना चाहता था, कर सकता था. So what happened? Does market allow them to do what they want to? क्या कंज्यूमर ने ये वाला यूनिट जो है इस प्राइस पे खरीदा? क्या सप्लायर ने ये वाला यूनिट इस प्राइस पे बेचा? नो, आंसर इज नो, क्योंकि मार्केट के अंदर each unit is being sold at a same price which is the equilibrium price. तो इसका मतलब है ना सिर्फ ये यूनिट बल्कि सारे यहां से लेके यहां तक की यूनिट being sold at the same price which is this one. तो who is getting benefit? Both are getting benefit. For if we talk about consumer was willing to buy this product at this price. For I'm just focusing on one unit, but the same analysis applies for every unit in this segment. So if I just talk about the first unit, consumer was willing to buy it at PD, but market offered it at P bar. इसका मतलब है कितना उसको benefit मिला to buy this product. Well, this is the price he wanted to sell, and this is the price at which he is bought. This is the price at which he wanted to buy, or this is the price at which he actually bought. So the difference is basically this much, right? If I talk about the next point, इसको मैं जहां से vertical लेके जाऊं, so ये जो vertical difference है, this is the difference which shows the difference between the price he wanted to offer. He wanted to buy at this price and actually he bought at this price. तो ये सारे differences क्या है? ये सारे differences shows the benefits to the consumer because he wanted to buy at a higher price but the market is offering it him at the lower price. ये सारे के सारी जो vertical gaps हैं, ये सारे के सारे क्या है? They are the benefit to consumer. Okay, is there any quantity in this whole diagram where consumer is actually paying the price which he was willing to pay? Yes, this point. Agar aap if just consider this point as a point on a demand function, so this is the point which shows that this quantity q bar is this exactly this one. यानी ये पीछे की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही. So consumer was willing to buy this quantity at p bar and market is offering him to buy it at p bar. तो इस वाले पे कोई बेनिफिट नहीं है. इसका मतलब है इससे पहले जितने भी पॉइंट्स है क्वांटिटी के, यानी कि जितनी भी लेवल्स है क्वांटिटीज के, वो कंज्यूमर जो है वो हाई प्राइस पे बाय करना चाहता था लेकिन मार्केट उसको लेस प्राइस पे ऑफर कर रही है. तो ये सारे वो चीज डिफरेंसेस है जो कि उसकी विलिंगनेस टू पे और बाइंग बाय व्हाट ही एक्चुअली पेड फॉर के डिफरेंसेस को शो करती है एंड कंज्यूमर के बेनिफिट को. तो एक माइक्रो की लैंग्वेज में जो कंज्यूमर का बेनिफिट है वी कॉल इट कंज्यूमर surplus. Consumer surplus. So what consumer surplus? It is defined as the difference between the price consumer was willing to buy and willing to pay and what he actually pay. ठीक है जी. तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ही वाज विलिंग टू पे एंड द प्राइस व्हाट ही एक्चुअली पेड. और ये वर्टिकल लाइंस हैं जो कि ये डिफरेंसेस को शो कर रही हैं. सो अगर मैं देखूं तो ये यानी कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये नहीं है कि ये है फिर ये है फिर ये. नो,
एवरी नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्वांटिटी। तो ये जो पूरी सेगमेंट है ना, दिस इज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज द कंज्यूमर हैज बॉट। तो इसके रेलेवेंट जब मैं यहाँ पर लाइनें वर्टिकल लाइंस बनाऊंगी तो ये ऐसे गैप्स नहीं आएंगे, बल्कि ये एक पूरा सॉलिड एरिया आएगा। इसको मैं शेडेड कर देती हूँ। दिस शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटिंग the benefit to the consumer, which we call consumer surplus, and we are defining it as the difference between the prices the consumer was willing to pay and the price he actually paid. और ये जो शेडेड एरिया है सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन? अगर ग्राफ के हिसाब से देखे जाए तो कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड फंक्शन एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो ट्रायंगल है ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो मैं यहाँ पर ये बात भी लिख देती हूँ, आप इसी नोट्स के नीचे लिखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया, इट इज द एरिया बिलो डिमांड फंक्शन एंड अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं प्रोड्यूसर की तरफ। प्रोड्यूसर जो था वो इस यूनिट को सेल करना चाह रहा था पीएस पर, लेकिन मार्केट ने उसको ऑफर दिया ये, तो बेनिफिट ही हुआ ना। तो ये डिफरेंस बेनिफिट टू द सप्लायर है। तो एक बेनिफिट नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक एवरी क्वांटिटी हैज सम कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट। तो अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूँ तो इतना बेनिफिट ये सो ये ऑल ऑफ इट। तो ये सब क्या है? सो लेट मी शेड इट। इसको मैं शेड कर देती हूँ सिर्फ डिफरेंस के लिए। तो ये क्या चीज़ है? ये है क्या चीज़ है? ये है जनाब बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। और इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हाउ यू डिफाइन इट? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द प्राइस द प्रोड्यूसर वाज actually receive and what the price he was willing to ask for। तो ये जो डिफरेंस है प्रोड्यूसर सरप्लस है। और ग्राफ की लैंग्वेज में द एरिया बिलो द डिमांड फंक्शन एंड अबव द सप्लाई फंक्शन, बिलो द डिमांड प्राइस द एरिया बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अबव द सप्लाई फंक्शन इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। ये ग्रीन एरिया जितना भी ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये जो काला वाला एरिया है ये है कंज्यूमर सरप्लस, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर आप इन दोनों को जमा कर लें, यानी इफ यू जस्ट ऐड अप कंज्यूमर सरप्लस विद प्रोड्यूसर सरप्लस, तो प्रैक्टिकली ये एक ट्रायंगल बनता है। लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल इट बी, और ये है ई। तो ट्रायंगल ए बी ई बनता है। तो ये सारा का सारा क्या है? इसको हम कहते हैं, इस कॉल्ड जनरल वेलफेयर। दिस इज कॉल्ड जनरल वेलफेयर। तो ये ट्रायंगल जो है बिलो द डिमांड फंक्शन एंड अबव द सप्लाई फंक्शन, you know, encircled by this price line। ये जो ट्रायंगल है दिस इज कॉल्ड जनरल वेलफेयर। जनरल वेलफेयर इज द वेलफेयर ऑफ एवरी the welfare this is correspond to the concept here। welfare is defined as the welfare to each individual residing in the society। ठीक है, उसमें consumers and producers को हम consider कर रहे हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो बेनिफिट है और उनका जो सरप्लस है उसको हम एड अप कर ले तो हमारे पास जनरल वेलफेयर आ जाता है। तो ये इस तरह से ये जनरल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये जनरल वेलफेयर तो बेसिकली क्या आ गया? जनरल वेलफेयर इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। और कैसे वर्कआउट करेंगे? बड़ी आसान जबान में। यहाँ पे क्वांटिटीज है, यहाँ प्राइस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो ये जो सारा का सारा एरिया जो है ये सारा का सारा क्या है? जनरल वेलफेयर का एरिया है। इसमें कंज्यूमर का कितना पार्ट है और प्रोड्यूसर का कितना पार्ट है? तो ये इक्विलिब्रियम से एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम ग्रीन इस वाले को हम ग्रीन कर लेते हैं और दूसरे वाले को हम कर लेते हैं पिंक। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये है जी कंज्यूमर सरप्लस, ये वाला जो है ये है प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये वाला जो है ये है कंज्यूमर सरप्लस। और ये सारा जो एरिया है ये सारा एरिया यूं करके जो आ रहा है इस तरह से डिवाइडेड है डिफरेंट कलर्स के अंदर, ये सारा का सारा है जनरल वेलफेयर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों आई? तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन how we use this analysis to understand another fact।
तो अब मैं नेक्स्ट जो है I'll show you something else. सपोज करें कि मार्केट में there is a government intervention. There is a government intervention. गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होती है? गवर्नमेंट इंटरवीन बहुत तरीकों से करती है. नंबर वन वो करती है कि in order to support consumer, they fix price and that is called maximum price. This is a maximum price the consumer the producer can charge, and then it is this इसको कहते हैं price ceiling कहते हैं कि floor. There are two type of price ceiling and price floor. You cannot go below the floor and you cannot go above the ceiling. तो ये है price ceiling यानी इससे ऊपर नहीं आप जा सकते. और दूसरा है इसी तरीके से वो समटाइम, और ये किसको सपोर्ट कर रही है? ये कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर को कोई प्राइस अगर सपोर्ट करेगी तो वो इक्विलिब्रियम से नीचे डिटरमिन हुई होगी, और अगर प्रोड्यूसर को अगर कोई प्राइस पॉलिसी ऐसी हो जो प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रही होगी तो दैट प्राइस वुड हैव बीन अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उसको कहते हैं प्राइस फ्लोर. तो प्राइस फ्लोर इज अबव इक्विलिब्रियम. ये सेट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू टू सपोर्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, और इसको कहते हैं प्राइस फ्लोर. ठीक है, इसको हम ये पीएफ, उसको हम कहेंगे पीसी. तो पहले हम प्राइस सीलिंग की बात करते हैं और फिर हम प्राइस फ्लोर की बात करेंगे. तो प्राइस सीलिंग किसको सपोर्ट कर रही है? कंज्यूमर को सपोर्ट कर रही है. तो अब हमें प्रैक्टिकली ये देखना है कि क्या वाकई कंज्यूमर को फायदा हो रहा है कि नहीं. तो प्राइस सीलिंग की बात करते हैं. प्राइस सीलिंग इट्स अ मैक्सिमम प्राइस सेट. ठीक है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड हो गई, और ये कहाँ पर होती है? इट्स जनरली बिलो इक्विलिब्रियम. ये सारी बातें मैं लिख रही हूँ ताकि याद रहे. अब मैं इसको आपके सामने शो करती हूँ. ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है डिमांड, और दिस वन इज अगेन सप्लाई, और ये है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल करनी चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये प्राइस नहीं, सिर्फ ये प्राइस है, जिसको हम कह रहे हैं प्राइस सीलिंग. प्रोड्यूसर कैन नॉट चार्ज मोर देन प्राइस सीलिंग. ठीक है जी. अब अगर आपको याद हो तो हमारे पिछले एनालिसिस के अंदर हमने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की जो बात की थी वो ये सारा एरिया था. ठीक है. इफ एनी पॉलिसी वुड इंक्रीज जनरल वेलफेयर तो वो पॉलिसी अच्छी है. अब हम ये देखते हैं कि इस पॉलिसी से जनरल वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ता है. एज previous definition is कि any area below demand function and above equilibrium price is the consumer benefit or consumer surplus, or any area below demand function and above supply function is the producer surplus. ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू वो वाले रूल के हिसाब से ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, और पुराने रूल के हिसाब से ये कंज्यूमर सरप्लस है. लेकिन अब स्टोरी चेंज है. ये हमारे पास सीलिंग प्राइस आ गई. ये जो सीलिंग प्राइस है उससे क्या हुआ कि प्राइस इसकी बजाय अब आ गई है यहाँ पर. ठीक है, जो रेड को मैंने किया. तो इसका मतलब है कि ये एक एरिया है जो कि चेंज हुआ है, और ये किसके सेगमेंट से निकला. अगर आप नोटिस करो तो पहले ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो था ना प्रोड्यूसर के पास था, और उसमें से अब प्राइस जो जब नीचे चली गई तो प्रोड्यूसर के पास कौन सा सेगमेंट रह गया? ये वाला. तो कितना चेंज आया प्रोड्यूसर के सेगमेंट में? ये सारा चेंज आया. तो ये क्या चीज है? ये है डिक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस. इसके अंदर जो है ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो सप्लाई एंड डिमांड के अंदर अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस जो है वो एक फिक्स कर देती है, और गवर्नमेंट जो है वो प्राइस फिक्स कर देती है, तो अब क्या हो रहा है? सो बेसिकली हम ये देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस में क्या चेंज आया, प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज क्या आया, और कैसे डिकम्पोजिशन हुई, और कौन सा ऐसी चीज़ें थी जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकी. तो ये बेसिकली इसका